Periodic table, this is going to be lecture number 4. And yes, so we were doing exceptions in atomic radii. Date today is 16th September 2020. Now, तो अभी तक हमने बताया था कि एटॉमिक रेडियाई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव के। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई घटेगी, है ना। एंड वी हैव आल्सो सीन कि कहीं पे पुअर शील्डिंग हो जा रही है, मान लो ड्यू टू 3D and 4F, तो क्या होगा, एकदम से साइज जो है वो बढ़ जाएगा, एकदम से साइज बढ़ने लग जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हैव दीज एक्सेप्शंस। अच्छा, मैंने आपको एक मिनट में लास्ट मुझे वो देखने हैं। लास्ट क्लास मैंने जो पढ़ाई है उसमें आपको पीरियोडिक वेरिएशन बता दिया था, ठीक है। This is we have done, okay, already यहाँ तक। So exception in atomic radii, we are going to start with let's say in 3D series. So in 3D series, what happens if you are going to see the 3D series? Then scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, then iron, cobalt, nickel, copper, zinc. So if you are going to see this first five elements, now what is happening here? Continuously radii is decreasing. Okay? Here continuously radii is decreasing. The moment you reach to Mn to Fe, the radius is approximately constant. Okay? And then after nickel, the radius is increasing. So here we are saying Z effective is increasing. So that's why Z effective is increasing. The radius is decreasing. ठीक है, हमने देखा है कि Z effective बढ़ता है, right? In any period, Z effective is increasing. So that's why in D block also Z effective is increasing. So that's why radius is decreasing. What happens after iron? After iron, Z effective remains approximately constant. Z effective is approximately constant. So if it is approximately constant, why it is happening approximately constant? So one reason is given as, and you have to remember this order. One reason is given as when you are going to fill the, let's say, electronic configuration, when you are going to fill electronic configuration in D. So you are filling 1, 2, like scandium 1 electron, titanium 2 electron, vanadium 3 electron, right? Chromium 5, and manganese is also 5, D5. Now in case of, let's say, Fe, the D6 will come. So the electrons are going to start to pair. Now here pairing is also causing repulsion, or you can say effectively the Z is,
the effectively what is happening, the electrons are repelling further. पहले जितना हो रहा था उससे ज्यादा थोड़ा repulsion होने लग गया है ना. So what is happening is we are saying Z effective over here is approximately constant, so it's not increasing much because of pairing. So this is going to be Fe, let's say 36. So here it has happened pairing. You know, the net change in Z effective from Mn onward is approximately 0. Okay, so that's why Z effective is constant, because the moment you are going to fill some electron over here, what will happen? The pairing will happen, repulsion will happen. This is going to cause extra repulsion, right? So effectively Z effective is 0. Now what happens here? So here these are having D10 configuration. These are having D10 configuration. Stable. ठीक है. Hence, है ना, hence weak, you can say metallic bonding. And Z if then radii increases. Now remember this, that this size which you are calculating, this is based on what is the internuclear distance, right? What is the internuclear distance? So if somebody is having D10 configuration, then this atom is relatively stable. It is not having, it is not going to, let's say, participate in sharing or whatever, right? It's not going to participate that much. जितना ये सब कर रहे थे उतना तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टेबल है D10 कॉन्फ़िगरेशन. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो जब उतना नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी. भाई हम क्या कर रहे हैं, हम जो एटॉमिक रेडियस निकाल रहे हैं वो दैट इज वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, है ना. केमिकल बॉन्डिंग मींस कोवेलेंट बॉन्डिंग या फिर मेटालिक बॉन्डिंग, उसके हिसाब से निकाल रहे हैं. So what is happening? D10 configuration is making it stable. So that's why what will happen? These are not going to believe in bonding. So the bonding is not going to be that strong. So that's why क्या होगा यहाँ पे, radii is going to increase. समझ में आया? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ये एक्सेप्शन समझ में आया? समझा सर. हाँ सर समझा. Okay, so this order you have to remember. Okay, कि ये scandium 2 वैसे मैंगनीज घट रहा है, and iron 2 को let's say manganese 2, let's say nickel, it is approximately constant. अच्छा, अगर कोई पूछे सबसे स्मॉलेस्ट let's say रेडियाई किसकी होगी, तो निकल की, है ना. तो ये नोट ये लिख लेते हैं, स्मॉलेस्ट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई in 3D series, that is निकल, है ना. निकल का साइज सबसे छोटा है यहाँ पे. ठीक है, ये तो हो गए एक्सेप्शन. for D series, let's say. अब इसमें एक और बात है, अगर हम ग्रुप में बात करेंगे, ठीक है, if we are going to talk about in groups, so ग्रेटेस्ट स्कैंडियम होता है एक्चुअली में. वेट अ सेकेंड, ठीक है.
ठीक है, तो देखो इसमें ये मतलब 12th में आएगा DNF ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, I just want you to visualize little bit। ये देखो, ये एटॉमिक रेडियस का ऐसा ऑर्डर दे रखा है ये, ठीक है, दिस इज एटॉमिक रेडियस ऑर्डर। एंड यहाँ पे ये आपकी 3D सीरीज है। सो दिस इज गोइंग टू बी लेट्स से डिक्रीजिंग 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 एंड दिस इज ऑलमोस्ट लेट्स से कांस्टेंट टिल हियर, almost constant, but obviously nickel is smallest, and then it is increasing increasing increasing. The similar order you are going to see over here, the similar order you are going to see in over here, ठीक है, 3D 4D 5D, so this is going to be similar, ठीक है। now समझ में आया? ये चीज आप ऐसे you can visualize this, right? This is given very nice way, it's a representation। तो ठीक है, so what is going to happen, अब देखो इसमें दूसरा एक्सेप्शन क्या है, what is going to be another exception। तो इसमें ये है कि when we talk about group, so in transition element, another let's say third, in transition element that atomic radii of 3D series is smaller than 4D series, and 4D series and 5D series are approximately same। So this is actually में होना क्या चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, right? It should increase, and this is happening except third group, or you can say from 4th to 12th. This is again approximately, if somebody is saying then slightly it is bigger, but this is approximately the, let's say you can see here, the difference you can see over here, you cannot see that much over here, right? The difference you cannot see that much over here, right? This is what is written as. So this is going to be approximately same. So now this is except third group, or you can say 4 to 12. What is the meaning of this? Meaning is this, let's say if I'm going to write 3D series, so I'm going to write scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. And if I'm going to write 4D series, then I'm going to write, you know, yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, titanium, ruthenium, rhodium, palladium. I'm just writing a lot of time these series so that you will remember. Then you will write more times, तो फिर धीरे धीरे याद होने लग जाएगा, है ना। And the 5D series we are having lanthanum, hafnium, tantalum। ये कैसे था, साइंस टीचर वेरी कूल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जाना, है जर्रे नवाब मौत तक रूठे रहे, बड़े आग में कूदे, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई होगी, पिटाई होने के बाद कैसी आवाज आएगी, आउच। So this is going to be like this. Anyway, now the atomic number over here, हाँ बोलो, कौन कुछ कहना चाह रहा था? चलो ठीक है, अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे यू कैन आस्क, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर यू कैन सी दिस इज गोइंग टू बी 21 to 30, एंड दिस इज गोइंग टू बी, तो 21 में 18 जोड़ दो तो 39 टू, है ना, वी आर गोइंग टू हैव 48, एंड 39 में 18 जोड़ दो तो 57, दिस इज गोइंग टू बी 72,
280. So this is the important part. If this is your fourth group, this is third group. So this is fourth, this is fifth, going to be sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th. So we are talking about mainly from 4th to 12th. So what is happening here? Now when we will write, let's say, zirconium. So zirconium electronic configuration is Kr krypton 36. So 36 means fourth period complete, fifth started, 5s2 and 4d2. And when we will write zirconium, that is going to be 72, hafnium, that is 72. Then we are going to say xenon 54. तो 5 period खत्म हो गए, 6s2 started and then comes 4f. 57 के बाद क्या भरने लग गया? 4f. So that's why 4f14 and we are getting 5d2. Now you can see what is happening here. The 4f is coming here. So this is going to create poor shielding. Poor shielding, then sigma is going to decrease, Z effective will increase. Hence, hence radii decreases. And that is the reason from here to here, everywhere the radii is decreasing because we are having filled 4f orbital, filled 4f subcell. So that's why क्या होगा, शील्डिंग जो 4f के कारण लगनी चाहिए थी वो जितनी लगनी चाहिए थी उससे कम लगेगी. Z effective will increase, radii will decrease. Difference. So we can say hence radius of zirconium is approximately equal to radius of hafnium. Radius of, let's say, niobium is approximately equal to radius of tantalum, like that you can say. Yeah, onward, etc. But if you are going to talk about in third group, if we are going to say about yttrium, so this is going to be 39 and then it is going to be krypton 36, 5s2, 4d1. And if you are going to talk about lanthanum, that is 57, so this is xenon 54, 6s2, 5d1. So there is no 4f subcell in lanthanum. Hence, और shielding वाला जो केस था वो लगेगा नहीं. Hence, radius of scandium is smaller than radius of yttrium, and that is going to be smaller than radius of lanthanum. So ये वो बराबरी वाला नहीं आएगा. ठीक है, समझ में आया? क्या एक्सेप्शन बता दिया? किसी को कोई डाउट? ये लेट लतीफ कौन आ रहा है यार? नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं भाई. रेगुलर आना है तो आप एक बात समझ लो, है ना, सब लोग इस पूरी प्रिपरेशन में केवल एक ही चीज चेक हो रही है आपकी, वो है आपका डिसिप्लिन. अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हो, तो चीजें और डिफिकल्ट हो जाएंगी. जितनी अभी हैं उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी. Only the discipline is the way where you can make things easier. ठीक है, तो जो लोग बिल्कुल लेट आ रहे हैं, है ना, ऐसी पढ़ाई करने का क्या फायदा जिसका कुछ अच्छा रिजल्ट ना हो, है ना. समझ रहे हो मेरी बात? मतलब लड़ो तो ऐसे लड़ो कि जीतो, वरना तो लड़ो ही मत. पिट के आने का क्या फायदा, है ना. आईआईटी के एग्जाम में बैठे और बुरी तरह फेल हो गए, तो वो फायदा नहीं है, राइट. सो व्हाट आई वांट इज कि पहले तो रेगुलर क्लास में आओ,
और बिल्कुल टाइम पे आओ यार। ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, चल रहा है। अभी क्लास में 47 स्टूडेंट ने, स्टार्ट किया था तब 35 थे, फिर धीरे धीरे फिर कम हो जाएंगे बीच में। अगर 10 बजे से 5 मिनट भी अगर ज्यादा हुआ तो मतलब 10 बजे के बाद अगर 5 मिनट भी ज्यादा हो जाता है तो 10-15 लोग ऐसे ही चले जाते हैं। अब बस हो गया भाई, हमारी लिमिट इतनी थी। तो ये सब चीजों से क्या होता है ना, यू आर डूइंग लेट्स से मोर हार्म टू योरसेल्फ, मिसिंग क्लासेस, है ना। डोंट डू दैट। एंड जहां पे भी नहीं समझ में आए वहां पूछो। मैं बार बार पूछता रहता हूँ कि भाई आगे समझ में है ना। और आप ऐसे शर्माते रहोगे तो फिर नहीं होगा कुछ। ठीक है, बिंदास होके अपनी बात बोलो, आई हैव नो प्रॉब्लम। ठीक है, आया समझ में? सही, यस नो? हाँ सर। यस सर, सब यस सर। हाँ ठीक। सर। हाँ सर, थर्ड ग्रुप बता सकते हो। सो थर्ड ग्रुप में मैंने क्या बोला, ये जो 50 लेंथनम है इसमें कोई 4f नहीं है, राइट। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जिरकोनियम और हॉफनियम है। यहाँ 5s2 4d2, 6s2 5d2 है ना। मतलब एक सेल बढ़ा तो एक सेल यहाँ पे बढ़ गया, राइट। बट हियर ऑल्सो कमिंग लाइक 4f। तो इसके कारण क्या होगा, पुअर शील्डिंग आएगी, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, रेडियस कम हो जाएगी। थर्ड ग्रुप में क्या है, यहाँ पे कोई 4f नहीं है, देयर इज नो 4f सबसेल इन लेंथनम, राइट। सो क्या होगा यहाँ पे वो पुअर शील्डिंग नहीं लगेगी तो फिर रेडियस ज्यादा होगी। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सर वो आर लंबा ए क्या है? ये टेंटलम है। और कौन सा ये लंबा ए? जिरकोनियम, हॉफनियम, नायोबियम, टेंटलम। को अमित जल्दी बताओ, हो गया? यहीं पे और ऊपर करना है? यही पे यही पे। हो गया? हाँ सर। ओके। Now let's see, we are talking about 4f series, है ना। मतलब in a transition metal, that is let's say f log element. So this is nothing but in 4f, in 4f series. So when we are talking about let's say 4f is cerium, सोडियम, जिनेपर नदियां, प्रेम की समाई, यो गदगद तब दिल हुआ, तेरा तुम्हें काकू लूटेगा। ठीक है, सो दिस इज 58 to 71. Okay, now what is happening here is, if you are going to write let's say cerium electronic configuration, so that is nothing but
xenon 54, 6s2, 4f1, 5d1. And if you are going to write praseodymium, that is 59. So what is happening? 54 xenon, 6s2, है ना, 4f3. We are going to write praseodymium, that is 60. So this is going to be 54 xenon, 6s2, 4f4. So you can see the electrons are filling in, है ना? As we are moving left to right, electrons are filling in 4f. As we are moving cerium to lutetium, you know, left to right. Electrons are filled in, you know, filled in 4f subcell. And which causes poor shielding. तो क्या हो जाएगा? Hence Z effective will increase. तो यहां क्या होगा? देखो भाई, नॉर्मली तो हमें ये बात पता है कि लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, ठीक है, नॉर्मली हमें ये बात पता है. लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ जो डिक्रीमेंट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से और भी ज्यादा होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हमें ये बात पता है कि साइज लेफ्ट टू राइट घटता है. डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में हमने देखा था थोड़ा थोड़ा जेड इफेक्टिव पड़ता है. बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? बिकॉज ऑफ दिस 4f सबसेल, है ना, राइट, दैट इज कॉल्ड poor shielding. So Z effective is increasing, hence size is decreasing more than expected value. And this contraction is called, contraction in lanthanide series or lanthanide contraction. इसमें सब एटॉमिक रेडियस है. हाँ, ये सब एटॉमिक रेडियस की बात हो रही है, ठीक है. We are talking about atomic radii only. यहाँ पे क्या हुआ? टर्म इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे लिखा हो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ये साइज यहाँ पे लगातार कम हो रहा है. And if we are going to talk about exception, तो exception is europium. So what is happening? Hence from cerium, है ना, cerium to praseodymium, let's say this is let's say like this, it is decreasing continuously to lutetium, है ना. You can write, you can fill in between, right, or you can write like this, and cerium to lutetium radii decreases. Now there is exception. Europium is having largest atomic radii. तो यूरोपियम का जो साइज है ना वो सेरियम से भी बड़ा है. And the reason is europium electronic configuration, that is 63, is xenon 6s2 4f7. So here comes, this is half filled f orbital, ठीक है. तो जहां जहां एक्सेप्शन आ रहे हैं ना वहां पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. So half filled f orbital which gives stability, hence weak metallic bonding. तो जहां कहीं पे भी, जैसे मैंने D10 कॉन्फ़िगरेशन बताया था, जहां पे एक्सेप्शन आएगा उसका रीजन ऐसे बताएंगे, weak metallic bonding, and that's why the size is going to be
going to be more. In case of ionic radii, cerium 3 plus to lutetium 3 plus, size decreases uniformly. है ना? That means no exception. जब हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, so what will happen in ionic radii? आयनिक रेडियाई में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं. So we are removing 3 electrons, 2 from here and 1 from here. So this is 4s1. यहाँ से 2 from here and 1 from here, so 4f2. 2 from here, 1 from here, 4f3. So you are going to see that here ना, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे अटपटा चल रहा था वो यहाँ नहीं चलेगा. 4f1, 4f2, 4f3, 4f4 ऐसे चलता जाएगा. यूरोपियम में भी क्या आएगा? ऐसे ही 4f6 आने लग जाएगा. So that's why there is no exception in ionic radii. इस बात को यहाँ पे भी देख लेते हैं. ठीक है. आगे. So you can see this is okay. They have given lanthanum also, but okay, lanthanum. Okay. So from cerium to, है ना? This is cerium to let's say आगे lutetium तक या ytterbium तक जो value दे रखी है, you can see this is continuously decreasing. This is exception, europium. Then again it is decreasing. But when you talk about Ln3 plus, right? Then there is no exception. It is continuously, है ना? यहाँ पे 96 to 95 is going to decrease. So this is what I want to explain. This is the information. ठीक है, तो ये हो गया भाई सब एटॉमिक रेडियाई के सारे हमने यूज कर लिए. नेक्स्ट अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल. नोट डाउन करना था. Done, sir. Okay. सर सर एक मिनट वो लास्ट लाइन दिखाओ ना, इधर नीचे लिखा हुआ. Done, sir. Okay. So next is, let's say we are talking about next let's say heading, next property, that is going to be ionization potential. Now who is going to tell me what is ionization potential is? We have done in atomic structure. बोलो भाई तरम. तो 10th का डेफिनेशन याद है? क्या याद है? 10th वाला याद है? अरे तुम 10th वाला बताओ. Ionization potential is the amount of energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom. Yes, correct. So the important thing you have to remember is isolated atom, gaseous atom. Okay, so this is an important thing.
So let's understand this part. So ionization potential, we can say the energy, the minimum energy required to remove electron from ground state of isolated gaseous atom. So you can see here two or three things you can highlight, that is minimum energy required to remove electron from ground state and of isolated gaseous atom. This ground state का मतलब क्या है? This should be in, let's say, है ना, जो भी हमारा outer most electron है ना, to remove outer most electron we should say and remove a outermost electron from ground state of isolated gaseous atom. Ground state का मतलब ये नहीं कि n equals to 1 है. Ground state का मतलब है minimum energy की state. ठीक है? That is going to be, जो भी मैं पहले बता चुका था atomic radii में कि atomic structure में कि कैसे ground state change हो जा रही है ना. Now this is going to be your ionization potential. So the main thing is removing an electron. So if I have to represent this part, so I can say X gas is going to convert into X plus gas, and this is going to be electron, and that is going to be ionization energy, and this ionization energy is positive in nature. What is the meaning of positive? Delta H ionization I should write. So this positive means energy absorbed, है ना, or you can say required. मतलब भाई देखो यहाँ पे क्या है. So let's say imagine this कि ये right, ये nucleus है और ये outermost electron है. So this is X. Now if you are giving energy, you are giving some energy, right? What will happen? आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो which is held by this nucleus. तो आप क्या कर रहे हो, ये बॉन्ड को ओवरकम कर रहे हो, दिस एनर्जी को, है ना, दिस अट्रैक्शन को ओवरकम कर रहे हो बाय गिविंग एनर्जी. तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. सो दैट एनर्जी वी आर गोइंग टू से इज आयनाइजेशन एनर्जी. समझ में आया? सर आइसोलेटेड गैसेस एटम मतलब आइसोलेटेड गैस, ऑब्वियसली ये दिस इज थियोरेटिकल लेट्स से डेफिनेशन है ना. आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या है, ठीक है, वो भी अभी समझा रहे हैं. सो लेट्स से वी हैव सीन, ये तो पहले आपको समझ में आ गया है ना, रिप्रेजेंटेशन की मैंने ये क्या बताया यहाँ पे, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉजिटिव. सो डेल्टा एच पॉजिटिव इज गोइंग टू बी एनर्जी एब्सॉर्ब. नाउ why isolated atom? Another example, if I am going to say Na solid 2, it is forming Na plus, है ना, let's say this is in aqueous pani and this is electron. So this is not ionization energy. Yet whatever is, let's say, energy is going to be, you know, whatever the energy is going to, let's say, required for this process, the delta H reaction, let's say this is, I am writing reaction, delta H reaction, that is not going to equals to ionization energy. ठीक है, ये नहीं है, this is not defined for solid. What is defined for solid is कि जो ये sodium है, you have to convert into gaseous atom. So solid is going to convert into Na gas. ठीक है. So if you are going to convert
sodium solid into gas, then you need sublimation energy. ठीक है, you need sublimation energy. किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए. और जब आप right, when you are going to remove one electron, then Na plus gas plus electron, that is going to be ionization energy. ये गैस से गैस में ही जा रहा है. Now if you are going to put Na plus gas into Na plus aqueous, that is called hydration energy. अब इसको किसने घेर लिया? पानी ने घेर लिया. So that's why this delta H reaction is summation of this plus this plus this, है ना? ये रूट पूरा लगाना इसको यहां तक पहुंचने में. So that's why it is not equals to ionization energy. This is the meaning. ठीक है, तो ionization energy का मतलब क्या है? गैस से गैस में रहने वाला है. समझ में आया ये बात? हाँ सर. ठीक है. अच्छा, आइसोलेटेड एटम का मतलब ये भी है, इट शुड बी विदाउट बॉन्डिंग, है ना? ऐसा नहीं है जैसे Cl2 होगा. मान लो if I am going to talk about example, one more example, if I am going to say Cl2, है ना, and this is gas, so can I say, let's say like this, 2Cl minus plus 2 electron I have removed, या फिर I will write half Cl2, and if I am going to write, let's say Cl gas here plus, let's say I have removed one electron, no, sorry, so Cl plus and one electron here. So can I say this delta H reaction as ionization energy? No, I cannot say this as ionization energy. Actually ionization energy should be, क्या है, क्लोरीन क्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना, बॉन्ड बना हुआ है. फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, you have to convert into Cl gas. ठीक है, so that will require delta H. आगे हम पढ़ेंगे ये थर्मोकेमिस्ट्री में ये सब. बॉन्ड एनर्जी यहाँ क्या लगेगा, इससे इसको कन्वर्ट करने में क्या लगेगा, बॉन्ड एनर्जी लगेगी. कितनी लगेगी? आधी, क्योंकि आधा मोल है तो आधे मोल के लिए आधी बॉन्ड एनर्जी लगेगी. एंड दिस इज गोइंग टू बी, this is delta H reaction, and this is going to be ionization energy. So you need to be very careful, है ना? So I will write इसमें कोई डाउट इस बात में? सर डेल्टा एच मतलब? Delta H is called how much energy has released. ओके. ठीक है, so this is, you should remember that isolated gaseous atom means without any bonding. तो हम बॉन्डिंग की भी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कोई बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, now unit, what is going to be unit of ionization energy? So there are two unit. One unit is उधर उधर विदाउट आएगा ना? Isolated gas. without, हाँ, without any. ठीक है, so this is unit of ionization energy is electron volt per atom. भाई पर एटम निकाल लो, या फिर दूसरा क्या है, किलो जूल या फिर किलो कैलोरी पर मोल. और ये हम पहले से वी आर फेमिलियर विद दिस पार्ट, है ना, किलो कैलोरी पर मोल. We know this. What is the relation here? 1 electron volt per atom is equals to
approximately 96 किलोजूल पर मोल। कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा आप बता दोगे, ठीक है। अब थोड़ा और आगे समझते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। हमने देखा हुआ है कि Mg2+ बना, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाला हमने, राइट। सो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। In successive ionization energy, what happens? Let's say if I am going to take any element, let's say metal. So what I am going to do is I am just going to remove electrons. So M plus, sorry, gas electron. So here this is going to be delta H ionization energy 1, which is positive. Now if I am going to remove another electron from M plus gas, so this is going to be M2 plus gas, and this is going to be electron. So this is going to be delta H ionization energy 2, which is also positive. And subsequently we can write M2 plus gas say this is going to be M3 plus gas, and this is going to be electron. This is going to be delta H IE3 plus IE3, that is also positive. So you can see that's how we can write. Here important point you have to remember. Note. So successive ionization energy. Sir, ionization energy is always positive. Always positive. Successive ionization energy always, always increases. That means hence delta H ionization energy 1 is greater than delta H ionization energy 2. Sorry, means this is lesser than this, and this is lesser than delta H ionization energy 3, and subsequently, like, okay, so delta H ionization energy 4. ये बात आपने सही बताई, ये नोट भी लिख सकते हैं हम, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसको लिख लो। ठीक है, अब बात आती है, हाँ सर सबका प्लस हाफ है तो फिर डेल्टा एच I2 आयनाइजेशन एनर्जी 2 बड़ा कैसे रहेगा? अरे आ रहे हैं इसी बात में बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इस बात को लेट्स से समझ लेते हैं कि ये बढ़ क्यों रहा है ना। तो क्यों, इमेजिन करो कि जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर है, राइट। एंड लेट्स से हम ये इसमें हम बात कर लेते हैं सोडियम की, राइट। सो दिस इज, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल सोडियम, एंड देन वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से इन द आउटरमोस्ट शेल, लेट्स से इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर गोइंग टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो क्या रह जाएगा, Na+, so that is going to convert into Na+. Now still how many protons are there? So we are having 11 proton. Here also we are having 11 proton, but how many electrons? 11 electron here, and here we are having 10 electron. When you are going to remove electron from here, this part,
तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ना, इट इज गोइंग टू स्ट्रांगली अट्रैक्ट ना, आर से आर प्लस हो गया ये, है ना, मतलब अगर रेडियाई देखी जाए तो उसकी कम हो गई, तो उस पे लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, यस और नो, यस सर। है ना भाई। अभी क्या था यहाँ पे, 11 प्रोटॉन थे 11 इलेक्ट्रॉन थे, फिर से सुनो, है ना, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। तो हमने जेड इफेक्टिव देखा था, जेड इफेक्टिव वी विल कैलकुलेट। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम करते जा रहे हैं, तो सिग्मा वैल्यू कम होती जा रही है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ती जाएगी, राइट। सो द व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, सो इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, in this case z is equals to z effective, sorry, ulta, z effective equals to z minus sigma, so sigma is keep on decreasing, so z effective is keep on increasing। अब मान लो Na प्लस से अगर मान लो हमने Na2 प्लस बना लिया, तो क्या होगा यहाँ पे, let's say we are going to have, Yes sir, more energy will require. right, और वही यहाँ पे अब 9 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, सॉरी, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन ही रह जाएंगे, मैंने अंदर वाले 2 नहीं बनाया, ठीक है। So this is 11 proton, so this is Na2 plus, and subsequently whenever you are going to remove the electron, the sigma is continuously decreasing, so sigma is decreasing, z effective is increasing, so you have to work against a stronger force of attraction, that's why the ionization energy is going to increase, ठीक है। Any doubt इसमें, चलो No sir, no doubt, समझ गए sir. ठीक है। अब आगे ये बात आती है आयनाइजेशन एनर्जी, हमने ये बात बता दी, Ionization energy for noble gases is maximum. हाँ Ionization energy for noble gases maximum. हाँ, इन ए पीरियड, हाँ राइट, वी विल कम टू दैट पार्ट, वेट आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। हाँ, मैं एक और बात बता रहा था कि देखो यहाँ पे जब मैं एनर्जी ऐसे लिख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है ना, सो आई एम राइटिंग, है ना, गिविंग सम इंफॉर्मेशन, है ना, नोट अबाउट एंथैल्पी। Enthalpy is nothing but delta H, means enthalpy change, I should write. It is represented by delta H. So in any, let's say, reaction, in any chemical reaction, whatever, let's say, the change is happening, in during this change, whatever energy is going to release or absorb, that is going to called according to enthalpy change, ठीक है। So enthalpy change is delta H if it is positive. Now, then enthalpy delta H if it is positive means, let's say if I am going to write like this, if delta H is positive, इसका मतलब क्या है, endothermic reaction, you can say, or you can say energy is absorbed or required, and if delta H is negative in any reaction, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, ये आपने सुना है पहले, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, यस और नो? Yes sir. Yes sir. सुना है ये भी सुना है, डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ यस सर. ठीक है, वेरी गुड। ये मैंने जस्ट रिकॉल कराने के लिए बता दिया। तो एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं इसी बात को, लेट्स से इफ आई एम राइटिंग लेट्स से लाइक दिस, मैंने ऐसे लिख दिया x गैस प्लस 20 किलो जूल, राइट, gives x plus gas plus इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो 20 किलो जूल है, इसका मतलब क्या है, दैट इज शोइंग कि मैंने,
हाँ, दैट इज शोइंग कि मैंने एनर्जी दी है ना, एज ए रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या होता है? खत्म होता है ना, कंज्यूम, प्रोडक्ट बनता है. सो एनर्जी इज गोइंग टू बी कंज्यूम्ड ओवर हियर. सो हेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव 20. अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे 20 लिखा होता, लेट्स से, और आई कैन राइट द सेम थिंग लाइक दिस. X gas can be written like this: X plus gas electron and minus 20 kilojoule. मान लो ये लिखा होता है यहाँ पे माइनस साइन. इसका मतलब क्या हुआ कि इतना है ना, प्रोडक्ट में खत्म हो गया. ये माइनस है ना, बना नहीं ना, ये खत्म हो गया है. दिस इज द सेम थिंग कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले गए तो माइनस साइन आएगा, राइट? ये सेम वही उसी तरह से है. तो यहाँ पे माइनस अगर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इतना एनर्जी खत्म हो गया. सो बी केयरफुल. कई बार क्या होता है ना कि ऐसे यहाँ लिखा होता है -20 और आपको लगता है ये डेल्टा एच लिखा हुआ है. अगर अनटिल अनलेस डेल्टा एच करके ना लिखा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये वैल्यू है ना, एनर्जी में ऐसे लिखा हुआ है कि ये एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है. ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? किसी को कोई डाउट? यस सर. ठीक है, तो ये बातें भी सर याद. आपने एंथैल्पी चेंज का मीनिंग क्या बोला था? Enthalpy changes whatever is, let's say, in any chemical reaction, whatever, let's say, chemical changes is happening. So in those chemical change, whatever energy is going to release or absorb, that is going to called as enthalpy change. समझा सर. हाँ, क्या हुआ? समझा सर, बोलो. हाँ. Now we are going to say factors affecting ionization energy. We are going to say variation also. So first thing is simple. In period from left to right, factors affecting ionization energy and periodic variation. How this is going to vary? So let's say in period from left to right, Z effective increases, hence ionization energy increases. ठीक है? Or you can say Z effective increases, so that's why Z effective increases. Then you can say one more thing that you can relate with atomic radii also. Atomic radii increases, sorry, atomic radii decreases, so ionization energy increases. Now imagine this part. ये जो मैं कह रहा हूँ ये क्या है? इसका मतलब कि मान लो कहीं पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर है, और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन पास आता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है. let's say. So what is, let's say, force of attraction is, है ना, we are talking about force of attraction या फिर potential energy. Potential energy which is going to keep this electron together, keep this nucleus and electron together is K Q1 Q2 by R. So on this case, in this case, what is happening? अगर आप देखोगे तो Z effective continuously increase कर रहा है. Q2 तो क्या है? Charge of electron है, ठीक है? So Q1 is increasing continuously, Z effective is increasing, as well as radius is decreasing. Both are supporting to increase the potential energy. So that's why what will happen? है ना? Ionization energy is going to increase. ठीक है, इससे आप ये बात समझ सकते हो, है ना,
Q1 बढ़ा, जेड इफेक्टिव बढ़ा, एटॉमिक रेडियाई घटी, तो हो गया। तो ये यहाँ पे फैक्टर भी आ गया, एटॉमिक रेडियाई एंड जेड इफेक्टिव। सो वी कैन से हेंस, अगर हमें फैक्टर लिखना है, हेंस ionization energy is proportional to Z effective and ionization energy is inversely proportional to atomic radii. Now let's talk about exceptions. नहीं, इससे पहले थोड़ा ग्रुप भी कर लेते हैं। इन ग्रुप from top to bottom, ठीक है, Z effective is approximately constant, so this is not important. Right? But atomic radii is increasing. Hence, ionization energy is going to, atomic radii is increasing. And the number of cells are increasing, so atomic radii is increasing. Hence, ionization energy is going to decrease. ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा? We are going to talk about, let's say, example, ionization energy of order, ionization energy order, that is going to be lithium का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, सोडियम का होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर रुबिडियम का होगा, फिर सीजियम का होगा, एंड दैट्स व्हाई these three elements, है ना, इनका आयनाइजेशन एनर्जी इतना कम है, they used in photovoltaic cell or you can say gives photoelectric effect. कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे की तरफ आयनाइजेशन एनर्जी घटती गई, तो आपको ये समझ सकते हो कि इनसे निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो ये आसानी से यूज होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये यूज होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? यस सर। चलो अब समझते हैं, ये लिख लो, इसके बाद समझते हैं कुछ एक्सेप्शन। फ्रांशियम एक्सेप्शन है क्या? लिथियम एक्सेप्शन क्यों होगा? फ्रांशियम, ये ना के आरबीसी। अच्छा, अब वो रेडियो एक्टिव है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, मतलब अगर आप फ्रांशियम लिखना चाहोगे तो फ्रांशियम भी लिख दो, बट ये रेडियो एक्टिव है ना, तो यूज नहीं होता है। याद करने हैं, कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट्स याद करने हैं, किसके एलिमेंट्स याद करने हैं? एक ऐसा ग्रुप के, ग्रुप 3 वगैरह। हाँ, याद करने हैं ना, पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है।
चलो लेट्स मूव ऑन टू एक्सेप्शन. नाउ देयर आर सम चेंजेस, है ना. तो एक्सेप्शन क्या है वो इसको हम थोड़ा समझते हैं. सो पहला है इसमें, फर्स्ट है ड्यू टू penetration effect of s orbital. ठीक है, ड्यू टू penetration effect of s orbital. इसका मतलब क्या है? So let's say if we are going to say penetration effect of s orbital, that is, we can say penetration effect, and then we can say here pehla exception due to penetration effect. What is that? That s orbital is more than p orbital. So hence what will happen? Removal of electron from s orbital, completely filled s orbital, is slightly different to remove electron from, let's say, p orbital. या फिर मेरे को रीजन में ये सब लिखना चाहिए. So okay, exception. First exception is, let's say, I will say ionization energy of beryllium is more than ionization energy of boron. What is beryllium? Beryllium 4. So that is going to be helium, that is 2s2, and boron is nothing but, that is 5. So there is nothing but helium, 2s2, 2p1. So when we are removing, let's say we are removing electron, removing electron from 2s orbital, and when we are removing electron here, removing electron from 2p orbital. So 2p ऑर्बिटल में केवल ये यहीं पे, ऐसा नहीं 2p2 वाले केस में फिर ये हो जाएगा, है ना. These are, let's say, adjacent है. इनमें क्या है, जेड इफेक्टिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. And here you can see that this s orbital is closer to nucleus than this p orbital. So since s orbital is closer to nucleus, (2s) orbital or electrons of 2s orbital are facing strong attraction towards nucleus than electron of 2p orbital in boron. So this is, you have to remember, क्या हो रहा है, बेरिलियम और बोरॉन में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर. ठीक है, इस पूरे पॉइंट में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछ लो. ठीक है, अब आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है.
comparison to boron. ठीक है. The same exception is also for, the same thing is also for, let's say, similarly, ionization energy of magnesium is more than ionization energy of aluminium. ठीक है, ये यहाँ पे. But ionization energy of calcium is less than ionization energy of, यहाँ पे क्या आएगा, गैलियम. ठीक है. नहीं, गैलियम में ये वाला मत लिखो, गैलियम में ये एक्सेप्शन होता है. सो जस्ट फॉर क्लियर, यू जस्ट रिमेम्बर. ठीक है. Now second, let's say, exception. Second exception है, ये वाला since s orbital is closer to, ये वाला repeat करना. क्या बात कह रहे हो? ये वाला सर sentence repeat करना. Since s orbital is closer to nucleus, तो भाई ये क्या है, न्यूक्लियस की ज्यादा पास है, क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेंगे, वहां से निकालना इलेक्ट्रॉन. जैसे मान लो ये ऐसे ही हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के पास है, तो स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहे हैं, बस ये है. Now let's say we are talking about second exception, and that is half stability of half filled and fully filled. सर थोड़ा ऊपर. Half filled and fully filled, let's say, subcell. So except we are saying except S subcell, क्योंकि S में तो हमेशा या तो हाफ फिल होगा या फुल्ली फिल्ड होगा. S में तो एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन भरोगे यहाँ या फिर दो इलेक्ट्रॉन भरोगे. So this is stability of half filled and fully filled subcell we are talking about. So this is going to be P, D and F के लिए हम बात कर रहे हैं. Now what happens here? Between nitrogen and, so this is between ionization energy of nitrogen is greater than ionization energy of oxygen. देखो हो क्या, कायदे से होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट लगातार घटनी चाहिए, अब वो सॉरी एटॉमिक रेडियस घटनी चाहिए थी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, राइट. बट ये एक्सेप्शन है, क्यों है ना, वो हम बता रहे हैं. स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबसेल. सो बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की ज्यादा है. अब क्यों ज्यादा है वो समझते हैं. नाइट्रोजन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p3, एंड ऑक्सीजन में क्या है, हीलियम 2s2 2p4. सो लेट्स से दिस 2p3 का मतलब क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, एंड 2p4 का मतलब क्या है, like this. So this is stable, hence removing electron is difficult. While here it wants to you know, to gain, or it will, we can say it will gain stability after removing electron. It will gain stability after removal of electron. So that's what is happening. यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए डिफिकल्ट है, ये ऑलरेडी स्टेबल है. So you have to, let's say, put extra effort to remove an electron here.
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जल्दी से निकाल देगा कंपैरेटिवली, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, 2p3 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो that's right, so you just have to remember this part। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, सिमिलरली वी कैन से, है ना, phosphorus is more than sulfur, arsenic is more than selenium, like this, है ना, हाफ फिल्ड के कारण। now you will write the order, hence in second period लिथियम, है ना, लिथियम से ज्यादा होगा बेरिलियम का, और फिर बेरिलियम से ज्यादा होगा, बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक्सेप्शन है, आई विल हाईलाइट हियर। फिर एज वी आर गोइंग राइट हैंड साइड, व्हाट विल हैपन, अगेन आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज, तो कार्बन नाइट्रोजन, बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, so I will highlight again, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, एंड फ्लोरीन और नियॉन में, तो नियॉन तो स्टेबल है ही, इनर्ट गैस है ना, फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल है, सो इट्स गोइंग टू बी मैक्सिमम। तो हेंस यहाँ पे ऑर्डर क्या बन गया, लिथियम फिर बोरॉन फिर बेरिलियम, you have changed interchanged their position, right? Then we are having carbon, similarly here we have interchanged the position, so this is going to be oxygen, nitrogen, fluorine and neon, so that is going to be your order। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा है, ठीक है, इसमें। now in third period अगर हमें यही लिखना है, in third period similar, let's say order will come, we are going to have sodium, फिर उसके बाद हमें मिलेगा लेट्स से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ज्यादा है, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, देन क्लोरीन, देन आर्गन, और यू कैन से सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सॉरी सिलिकॉन, सल्फर, phosphorus, chlorine, argon, ठीक है। Here I am also going to highlight the exception, so you can see the sign has changed, यहाँ पे increasing the sign है लगातार right hand side में, but यहाँ पे sign decreasing का हो गया है ना, in those two cases। बोलो सानिका। फिर से समझाना थर्ड पीरियड, क्या, फिर से बोलो, नहीं आई आवाज। थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में सेम है ना, सेकंड पीरियड किधर है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, अब हम थर्सडे को लेंगे ना क्लास, आपकी डाउट क्लास, तो आप वहां पूछ लेना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, भाई लिथियम लेफ्ट टू राइट वाले एक्सेप्शन ये दोनों थे ना, एक पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो बेरिलियम और बोरॉन में और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में सेम आएगा, और ये हाफ फिल्ड वाला है, बस हमने एक साथ लिख लिया सेम ऑर्डर। आने का समझ में आया? हाँ सर। Okay, now we are, let's say, moving on to little bit further, ठीक है, एक और सी, so in let's say in
इन ग्रुप्स, ये तो पीरियड में थे. इन ग्रुप व्हाट विल हैपन? अच्छा, ये आप थोड़ा सा इसमें याद रखना कि लेट्स से आई विल से दम अनदर थिंग. ये तो अभी हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की है. मान लो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो ना. इफ आई एम गोइंग टू से सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, इसी में नोट करके लिख लेते हैं. दिस इज ऑर्डर फॉर IE2. अब क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूं, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम से लिथियम प्लस बन गया, है ना. अब मैं लिथियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ लिथियम 2 प्लस बनाने के लिए. सो आई एम कंपेयरिंग दिस पार्ट, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा ये एक्चुअल में है क्या. लिथियम प्लस इज बिहेविंग सिमिलर टू हीलियम, करेक्ट है ना. इसके पास क्या हुआ, एक तरह से बस नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए. इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया हीलियम. सो अच्छा, ये और एक याद रख लेना, हीलियम इज हैविंग हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम इज हैविंग हाईएस्ट. अच्छा, हीलियम और लिथियम प्लस में किसकी ज्यादा होगी? लिथियम प्लस की सर. लिथियम प्लस की. क्यों? नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है. प्रोटॉन ज्यादा है. करेक्ट करेक्ट. तो हीलियम इज हैविंग हायर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. सो हम वी आर टॉकिंग अबाउट इन एटम्स बता रहे हैं, among atoms, among elements, among all elements. So we are not talking about ions, right? So helium is smallest size, जेड इफेक्टिव ज्यादा रहेगा एंड रेडियस कम रहेगा, तो फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हीलियम की आएगी. एनीवे, बट द टारगेट इज नॉट राइट नाउ, इज नॉट हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात ना करके हम आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात कर रहे हैं. सो वी हैव टू थिंक what is over here. जैसे हम यहाँ पे लिथियम को देख रहे थे, तो अब हम यहाँ पे इसको देखने लग जाएंगे. So let's say if I am going to talk about beryllium, then this beryllium plus will be behaving as lithium atom. So ionization energy 2 का ऑर्डर अगर हमें लिखना होगा तो हम एक एक प्लेस पीछे होते जाएंगे, right? Just you have to remember this part. Now, so we are going to talk about lithium over here. Hence, what will happen? Hence, right? Order for IE2. So if I am going to say, let's say lithium 2 plus, तो सबसे मतलब IE2 के लिए क्या हो जाएगा, लिथियम का, है ना. अब थोड़ा सा ऑर्डर फॉर IE2 इसको इस तरह समझो कि मैंने अगर IE2 लिखा है तो ये किसका है, ये है लिथियम का IE2. अच्छा, एक और बात इससे पहले, ये बात समझ में आ रही है? सर थोड़ा स्क्रॉल अप करना सर, बस सर. फिर से देखते हैं. देखो, लिथियम का IE1 का मतलब क्या है, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया, फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो आपका ये बन गया. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट IE2, वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कि आपने लिथियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकाला है, राइट? अब इसको एक और तरह से लिख सकते हैं कि वी कैन राइट अनदर थिंग, वी कैन राइट, और IE2 of lithium is nothing but IE1 of lithium plus. इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर, समझा सर. ठीक है, तो बस अब हम यहाँ पे लिख रहे थे जब ऑर्डर, तो हम यहाँ पे तोड़ के इसी को लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ IE2. So let's say, तो IE2 का ऑर्डर लिखना है. जैसे मान लो दिस इज लिथियम, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, अभी हम बस ऐसे लिख ले रहे हैं, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
oxygen, fluorine. So over here what will happen? Lithium का IE2 का मतलब क्या हुआ? This is going to be, let's say you can write, or we can lithium write, plus iron. है ना, or we can write, है ना, order of IE1 of lithium plus beryllium plus boron plus carbon plus nitrogen plus oxygen plus fluorine plus. Now this order of IE1 हम जब हम लिख रहे हैं, इस बात को हमने ऐसे लिख लिया. अब लिथियम प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हीलियम को. बेरिलियम प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिथियम को. एक एक प्लेस आप लेफ्ट, मतलब सिमिलर टू, these are going to, so you are going to shift one place, so this is going to be beryllium. अब आपको पता है एक बोरॉन है, अब आपको पता है ये, है ना, कार्बन है, ये आपको पता चल गया ये नाइट्रोजन की तरह हो गया और ये ऑक्सीजन की तरह. now your order is going to be like this. इसके हिसाब से आएगा. तो आपको पता है हीलियम और लिथियम में तो हीलियम ज्यादा ही है, लिथियम और बेरिलियम में बेरिलियम ज्यादा है, बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम ज्यादा है, बोरॉन कार्बन में कार्बन ज्यादा है, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा है. अब यही जो सेम आपने साइन है आपको यहां डाल देने हैं. ठीक है, सेम साइन, राइट. सो ये यहां से हमें आया है. अब आपको याद ये रखना है, जब IE2 पूछा जाएगा तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन और निकालने के बाद जो बन रहा है वो आपको लिखना है. तो आपको डायरेक्टली मैं यहाँ बोलूँ कि IE2 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिथियम को डायरेक्टली आप समझ लो हीलियम की तरह, एक शिफ्ट कर दो अपने आप एक प्लेस. सो दिस इज अ ट्रिक, वी कैन राइट दिस इज, वी आर गोइंग टू शिफ्ट one place it from the towards the left. लिथियम is going to be beryllium. आप लिख लो फिर से, है ना. लिखना जरूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. सो जस्ट राइट, इसके नीचे लिखते जाओ क्वेश्चन में, पेपर में. Now you just write the order over here. जो भी ऑर्डर आएगा वो इधर डाल देना है. ठीक है, समझ में आया? ये बात समझ में आई? Yes sir. हाँ ना, बोलो ना. किसी को नहीं आएगा वो समझ में पूछ लो. सबको आगे समझ में? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. गुड. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एकदम कंफ्यूज कर देंगे ऐसे, है ना, याद रखना. अब मैं बोलूं IE3 अगर कर दूंगा तो फिर आप कर लोगे, दो प्लेस चले जाओगे. ठीक है, कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि IE3 का ऑर्डर बताओ, तो दो प्लेस पीछे चले जाएंगे. ठीक है, बस इस तरह से हम ऑर्डर बता सकते हैं. ना ये तो हो गया IE1 IE2. हाँ, अब मैं बात कर रहा था इन ग्रुप. तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट. हाँ, मैंने एक्सेप्शन में स्टार्ट किया, बेरिलियम बोरॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये आपको बता दिया. अच्छा, क्वेश्चंस मैं सोच रहा था तुम्हें पहले पूरा ये बता दूं फिर तुमको बोलता कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, वेट थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है ना. वेट, ये खत्म हो जाएगा फिर आप कर लेना क्वेश्चन. कुछ और एक्सेप्शन है वो भी हम देख लेते हैं. सिमिलरली वी कैन राइट वन मोर थिंग, देयर इज अनदर पॉइंट. लेट्स से, है ना, यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, नोट that ionization energy 1 of sodium is less than ionization energy 1 of magnesium. But, है ना, ionization energy 2 of sodium is greater than ionization energy 2 of magnesium. Yes sir, समझा.
है ना, ये बात भी आप यहां से समझ लो। ये कुछ नहीं है, ये आप इस ऑर्डर को देख लो यहाँ पे, है ना। बिटवीन लेट्स से लिथियम और बेरिलियम में नॉर्मल अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात कर रहे हैं तो लिथियम और बेरिलियम में कौन ज्यादा है? बेरिलियम ज्यादा है। बट अगर हम बात कर रहे हैं हीलियम और लिथियम की तो कौन ज्यादा है? हीलियम ज्यादा है। सिमिलरली व्हाट इज हैपनिंग हियर, Na और मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ज्यादा है। बट जब Ie2 की बात की तो ये Na एक्चुअली में क्या बन गया? दिस हैज कन्वर्टेड टू Argon, नियॉन, neon, है ना। और मैग्नीशियम क्या बना? सोडियम। sodium. तो नियॉन और सोडियम में किसकी ज्यादा है? नियॉन की ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रिटन, है ना। ये सबके लिए ही है, ये एक एग्जांपल मैंने करा दिया, है ना। यू कैन राइट फॉर लिथियम, बेरिलियम, किसी के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। अनदर, हाँ, इन ग्रुप। So in group what happens from top to bottom, atomic radii increases, hence hence ionization energy decreases. Hence ionization energy decreases. Now यहाँ पे भी exception है। First exception है ionization energy of aluminium is less than ionization energy of gallium. तो ये हम पहले बता चुके हैं, this is because of poor shielding of 3D 3D, yes. 3D सबसेल। तो वहां पे क्या हुआ था? रेडियस भी कम हो गई थी, रेडियस कम हो गई थी, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी बढ़ जाएगा। रेडियस कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई। दिस इज वन एक्सेप्शन। अनदर टू एक्सेप्शंस आर in P block. So this is exception we are seeing in P block. So ionization energy of, let's say, one of indium is less than ionization energy one of थैलियम, ठीक है। इंडियम क्या है? जैसे हम इसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम ग्रुप की ही बात हो रही है। So we are going to talk about, this is going to be 13, sorry 13, 31, this is going to be 49। 18 जोड़ दिया हमने और इसमें से 32 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? This is going to be 81। Now we are talking about indium, so this is going to be krypton 36, and we are having completely let's say 4 खत्म हो गया, 5 से 5s2 4d10 5p1, and we are having thallium that is 81। So what will happen? It is going to have xenon 54, 6s2 4f14 5d10 6p1। So you can say this is 4f, poor shielding। And that's why थैलियम की इंडियम से थोड़ी ज्यादा आती है वैल्यू। ये तो बोरॉन फैमिली थोड़ा ध्यान रखना, कार्बन फैमिली में भी सेम है ना। सिमिलरली in carbon family, similarly in carbon family, what is going to happen? That ionization energy 1 of Sn is less than ionization energy 1 of Pb, ठीक है, ये भी याद रखना। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे भी सेम थिंग है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 4f ऑर्बिटल। filled 4f subcell।
तो 4f सबसेल है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना, ये बढ़ रहा है। इन डी ब्लॉक क्या होगा, इन डी ब्लॉक, ठीक है, आयनाइजेशन थोड़ा एनर्जी, सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। एक मिनट, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ रहा है, रुक जाओ, 3D और 4D में 3D का साइज बड़ा है, तो 3D और 4D में 4D का, सॉरी 4D का साइज बड़ा है, तो 3D और 4D में 4D का कम आएगा, और 4D और 5D में 4D और 5D का साइज सेम है बट जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई 5D इज मोर, ठीक है, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, है ना। 5D में क्या है, प्रेजेंस ऑफ 4f सबसेल, दैट इज गोइंग टू कॉज पोर शील्डिंग, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इसलिए ये ऐसा आएगा। बताओ, ये हो गए आपके मोर और लेस सारे एक्सेप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका मॉड्यूल, और आप क्वेश्चन सॉल्व करो। एक मिनट मेरे को ओपन करने दो मॉड्यूल। नोट डाउन करना लास्ट लाइन। सर वो लास्ट में। अरे रुको एक मिनट, एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप का मतलब स्कैंडियम, है ना, दैट इज गोइंग टू बी यट्रियम, ये सॉरी उल्टा, एंड फिर यहाँ पे लेंथ। नाउ लेट्स से, आई विल से ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम 29 onward. क्वेश्चन नंबर 29 हो गया, समझ में आया? ये अभी हमने बताया था, एल्यूमिनियम परटेन्स टू पी इलेक्ट्रॉन, है ना, सी है आंसर, ठीक है। ना IP1 और IP2 में हाँ 29 to 34 राइट करो। यहां मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं, जैसे सुनो एक ध्यान से, ये वाले क्वेश्चन में कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये सक्सेसिव इन्होंने वैल्यू दे रखी है, एक एलिमेंट की सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखे हैं, और यू कैन सी दिस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, बट यहाँ पे आपको एक सडन जंप मिल गया, बहुत बड़ा, एकदम से लार्ज। सडन जंप का मतलब क्या है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद हुआ होगा वो स्टेबल होगा। यस सर, So नोबल that's why IE4 के बाद, सॉरी IE4 के बाद, let's say we are going to say IE4 के बाद क्या बना होगा, M4 प्लस बना होगा, और ये M4 प्लस क्या है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन।
नाउ यू जस्ट हैव टू चेक। तो M4 प्लस इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो M क्या हो जाएगा, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तो आपको M4 प्लस M बनेगा। फिर से सुनो, यहाँ एकदम सडन जंप मिला है, ठीक है। अगर यहाँ सडन जंप मिला है, इसका मतलब क्या है, इसके बाद जो बना होगा M4 प्लस, दैट इज गोइंग टू बी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो 4 इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज गोइंग टू बी सिलिकॉन। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, आई एम कमिंग जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है।
चलो, तो अभी आप लोगों के आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम आर 178 348, राइट। तो क्या होगा, दोनों बार ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस में आ जाएगी वैल्यू, प्लस में एक ही ये वैल्यू हाई लग रही है तो हमने जोड़ा भी नहीं, जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी कैन से दिस इज आंसर। ठीक है, तो Mg से Mg प्लस बनेगा, Mg प्लस से Mg2 प्लस बनेगा, सो these two are going to increase. Ionization energy of nitrogen is more than of oxygen because half-filled p orbital configuration is more stable. The element with the highest first ionization potential is, इनमें हमें देखना है, तो इनमें सबसे ज्यादा किसका है, नाइट्रोजन का। The ionization energy of sodium, magnesium, aluminium and silicon are in the order. तो सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, सोडियम के बाद, अच्छा इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है तो दिस इज साइन चेंज हो गया, ये हो गया। Which of the following transition involves maximum energy? तो देख लो ये M2 प्लस से M3 प्लस बन रहा है, ये आपका मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, तो ये आंसर्स हैं। अब आगे के क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना। 36 का डी, 36 बता दें। Amongst the following element whose electronic configuration given, the one which having highest energy is, तो जब ऐसा लिखा है तो लिख लो, ये लिखा है एल्यूमिनियम, ये लिखा है फॉस्फोरस, ये लिखा है सिलिकॉन, और ये क्या लिखा है Ar3d10 4s2 4p3, तो ये आपका आ गया क्या 18 28 30 33। ठीक है, अब ये फॉस्फोरस की फैमिली का ये 8 से निकाल। ठीक है, अच्छा ये तो सब आपको पता है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा दिक्कत आई हो, तो ये फॉस्फोरस की फैमिली का ये 4p3 से देख सकते हैं 3p3। तो बिटवीन फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक कौन ज्यादा होता है, फॉस्फोरस है ना, टॉप टू बॉटम गिरता है ना, डिक्रीज होता है तो फॉस्फोरस ज्यादा होगा। और यहाँ पे भी बिटवीन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस कौन ज्यादा है, फॉस्फोरस, बी नॉट डी। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीजेस, राइट। सही है, तो जिन लोगों का आंसर आ गया आप देख लें, राइट। एंड सिमिलरली वी कैन से ना, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन, इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन, ये बात सही है। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड आयनाइजेशन, यही बात गलत है ना। सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज नॉट ग्रेटर, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज ग्रेटर। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन, ये भी बात सही है। थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी सही है, क्योंकि थर्ड में जब जाएंगे तो मैग्नीशियम 2 निकालने के बाद क्या बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा, और एल्यूमिनियम 2 निकालने के बाद सोडियम बनेगा, तो नियॉन और सोडियम में नियॉन ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो अब आप क्या करो, ये आपको होमवर्क में मैं दे दे रहा हूँ। शुरुआत में मैंने कुछ क्वेश्चन वैसे ही करा दिए थे, पहले 10 क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, पहले 10-15, 44 तक आप कर लेना, है ना। दिस इज होमवर्क टिल 44, कहाँ से, ये वाले भी आपको पहले 10 कर लेने, यहाँ कहीं पे हैं फाउंडेशन में ये, राइट। ये पहले 10-12 जो भी क्वेश्चन हैं वो आप कर लेना। ठीक है, 12 हैं, तो 44 तक करना है, और फिर सब्जेक्टिव में करना है। अब हमने अभी तक सब्जेक्टिव टच नहीं किया है, सो नाउ इज द टाइम दैट यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग सब्जेक्टिव। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, 17th यू हैव टू डू, है ना। तो लिख लो 44 तक और 17 तक। देखो अभी देखो, जैसे ही 10 बजे नहीं 48 से 36 हो गए, 10-12 बच्चे भाग गए। अब जो लोग जा रहे हैं, भाग रहे हैं, आपका ना कुछ हो पाएगा, तो बता देना, आपके दोस्तों में होंगे ना कुछ, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, तो होमवर्क ही नहीं सुना उन्होंने, चले गए। 17, 44 और 17, ठीक है।
ये यहाँ तक जाना है। फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग गेट इक्विप टू जेईई मेन ऑल्सो, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। जो क्वेश्चन नहीं आए उनको छोड़ दो, बट मूव ऑन, है ना। मतलब लगातार आपको सॉल्व करते रहना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइजेज है। तो ये मैं सब आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप सॉल्व कर देना। ओके, दैट्स इट। सर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के और कितने लेक्चर्स होंगे? यार लेक्चर में आप परेशान मत हो, है ना। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा जब आपका ये TWT आएगा, उससे पहले, ठीक है। तो फिर उसके बाद एनजीबी 1 के साथ क्लब करेंगे। NGP 1 के बराबर तो आप अभी भी हो, आप कभी भी क्लब हो सकते हो। लास्ट वीक ही आपको बराबर हो गए थे, ठीक है। बाय सर। चलो, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा।